Okay, now let's continue further from shape of cells, right? Last time we had learned about this two unicellular organisms, that is amoeba and paramecium. कहाँ मिलेंगे आपको amoeba and paramecium? You will generally find them in water. नॉर्मली कंटामिनेटेड वाटर्स में अमीबा ज़्यादा होता है. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उसको बोलते हैं. इट्स द टाइप ऑफ अमीबा, इज़ द स्पीशीज़ ऑफ अमीबा. एंड उसकी वजह से आपको डायरिया होने के चांसेस रहते हैं अगर अमीबा कम्स राइट इनटू योर ड्रिंकिंग वाटर. सो so these are two unicellular organisms that we had studied in your previous chapter. In your lesson number 2, microorganisms, we had also studied there are certain unicellular algae also, like Chlamydomonas, right? It is unicellular algae. So fungi, unicellular fungi is also there, that is yeast, which is used for your baking and fermentation purposes, right? So now let us study the shape of cells. What are the shapes of cells? Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? How can you see the shape of amoeba? As it is irregular, right? It is not a proper specific shape. So it is irregular. So you may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projections of varying lengths protruding out of its body. Projections मतलब ऐसे उसके बॉडी के पार्ट्स ऐसे बाहर आते हैं, ऐसे हाथ के जैसे, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट? एंड वेन एवर देर इज़ एन ऑर्गेनिज्म ओवर हियर, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको एनगल्फ कर लेता है, एनसर्कल कर लेता है वो, एंड इट टेक्स इट अवे इनसाइड इट्स बॉडी एंड इट डाइजेस्ट इट. सो दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना अपनी बॉडी में. फॉर एग्जांपल डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है तो द फर्स्ट पार्ट इज इंजेशन. सो दैट वे अमीबा ऑल्सो डज इट. नाउ दीज आर्म्स विच इट एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स टू टेक और एनगल्फ इट्स फूड, राइट? ये दोनों एक हो जाते हैं फिर धीरे से, और एक हो जाते हैं तो ये फूड जो है वो फूड वैक्यूल बन के उसकी बॉडी में चला जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज these two arms which are protruding out, they are called as pseudopodia, but it starts with a p. So remember the spelling, it is pseudo मतलब false, जो गलत है वो, मतलब एक्चुअल नहीं है वो, जो रियल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज pseudo. एंड पोडिया मीन्स फीट, राइट? सो दैट इज इट्स एक्सटेंशन, that it extends. Okay, observe the projections of varying lengths protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. As you learnt in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds, right? It will come out with its pseudopodia. वो food को ले लेगा, फिर वो pseudopodia उसके नए बंद हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे, मतलब it will merge with its body, right? So that way it will keep on coming out with its pseudopodia and then it will disappear slowly, right? What advantage does amoeba derive by changing shape? The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food, right? pseudopodia क्या help करते हैं? उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है तो उसके लिए वो pseudopodia के थ्रू इट मूव्स, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स इट टू कैप्चर द फूड. A white blood cell, that is WBC, in human blood is another example of a single cell which can change its shape, right? But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence, right? WBC is a cell. WBC is nothing but those cells which help you build up your immunity. WBCs help you, protect you from any foreign particle that comes inside your body. They are white blood cells, right? दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs. आपको कहीं चोट भी लगती है आपकी बॉडी में तो उसको हील करने के लिए तुरंत WBCs वहाँ पहुँच जाते हैं. WBC में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स, ऐसे होते हैं. तो टी सेल्स जो है WBCs में से, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स फॉर बिल्डिंग योर इंटरनल इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी फॉर एनी इन्फेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल अभी ये कोविड का हुआ था तो उसमें आपको दवाइयों में क्या दिया जाता था? विटामिन सी टैबलेट्स दी जाती थी. विटामिन सी टैबलेट्स, विटामिन बी टैबलेट्स, ये सारे विटामिन टैबलेट्स से क्या होता है? आपका इंटरनल इम्यूनिटी बिल्ड होता है. दैट मीन्स इट हेल्प्स यू टू बिल्ड दीज WBCs.
white blood cells which help you from any disease causing organisms which are there in your body, right? So it combats, आपका बॉडी का इम्यूनिटी वो बढ़ाता है और उस जो वायरसेस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाते हैं उनको वो मारने के लिए हेल्प करता है, right? So these are WBCs. What shape would you expect organisms with billions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions. Nerve cells मतलब नर्व सेल्स मतलब क्या होते हैं, जो आपके ब्रेन तक इम्पल्सेस पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फिंगर में चोट लगती है, कट जाता है फिंगर सब्जी काटते काटते या कुछ कटते हुए, तो तुरंत आपके ब्रेन को पता चलता है और आप एकदम से हाथ पीछे खींचते हो और जो ब्लड निकलता है उसको आप एकदम मुंह में डालते हो फिंगर, राइट, जस्ट टू स्टॉप. क्यों? मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा विल गो ऑन दैट कट एंड इट विल हेल्प फॉर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, मतलब ज़्यादा ब्लड नहीं बहेगा. एंड इमीडिएटली द टी सेल्स यानी आपके WBCs जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को पता चलता है कि चोट लगी है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और उसको बंद करना है, राइट. सो इमीडिएटली दोस टी सेल्स स्टार्ट गोइंग देयर. सो ये कैसे होता है? जो नर्व सेल्स होते हैं वो आपकी फिंगर से इम्पल्सिस लेके आपके ब्रेन तक इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुँचाते हैं. सो दैट इज़ the function of nerve cells to conduct impulses, right? So nerve cells are, एक और चीज़ है nerve cells के बारे में, nerve cells are the longest cells in the human body. वो सबसे लंबे होते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक nerve cell आपकी फिंगर से लेकर पूरा ब्रेन तक लंबा होता है, right? So they are the longest cells in the human body, right? Now let us see the figures. Here see, this is a nerve cell. तो नर्व सेल जो आपका बॉडी का पार्ट है वहाँ से लेकर के आपके ब्रेन तक होता है लंबा. सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल. these are the RBCs, spherical red blood cells, and these are the spindle muscle cells. muscle cells जो होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं ना जो आपके डेंगू में कम हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स भी स्पिंडल शेप के ही होते हैं, राइट. they are this kind of spindle shaped cells, so they can easily migrate from within the cells. दो cells के बीच में जहाँ सेल वॉल होती है जगह नहीं होती है, वहाँ से भी बीच में से घुस के ये प्लेटलेट्स माइग्रेट कर सकते हैं, तो ब्लड हर जगह जा सकता है बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स, राइट. So that is why the shapes of different cells is different according to their function and structure, right. Generally cells are round, spherical and elongated. Some cells are long and pointed at both the ends. They exhibit a spindle shape, right. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or neuron. Nerve cell को neuron भी बोलते हैं. The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. इसीलिए nerve cell help करता है आपकी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए. कहीं भी आपको चोट लगती है इमीडिएटली वो इम्पल्स पहुंचाता है. अगर आप गैस के पास कुछ काम कर रहे हो और मान लो जल जाती है, आपकी फिंगर जल जाती है, तुरंत आपके ब्रेन को पता चलता है, आपका हैंड एकदम से पीछे जाता है, राइट. वो किसकी वजह से जाता है? बिकॉज आपकी स्किन में जो नर्व सेल है वो इम्पल्स कंडक्ट करता है आपके ब्रेन तक. दैट इज़ वाई. Then can you guess which part of the cell gives it shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. मतलब कौन सा पार्ट सेल को शेप देता है? तो उसका एक्सटर्नल बाहर का पार्ट होगा वही उसको शेप देगा ना, राइट. सो उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, राइट. सेल वॉल एक्सटर्नल होता है और एडिशनल होता है, वो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है सेल वॉल. मतलब प्लांट और एनिमल सेल का अगर डिफरेंस पूछा है तो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, दे हैव सेल मेम्ब्रेन ओनली, राइट. प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है. इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज cells. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होता है, इसीलिए उसको प्लांट में कंसिडर किया है.
इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स में कंसिडर किया जाता है। और वायरसेस ऐसे है कि जो कनेक्टिंग लिंक्स है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, वो जब एनिमल सेल के बाहर होते हैं, जब उनके पास कोई होस्ट सेल नहीं होता है, तो वो लोग डेड फॉर्म में होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग रादर, उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है वो, राइट। जब वो होस्ट सेल के अंदर आ जाते हैं तो दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड फॉर्म देयर ओन कॉपीज, एंड दैट इज अ लिविंग कैरेक्टर. So that is why they are considered as dormant. Okay. Now size of cells. The size of cells in living organisms may be small as a millionth of a meter, micrometer or micron, may be as large as few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. Unaided eye मतलब नॉर्मल आई से आप नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए सेल्स को देखने के लिए. दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria, right? Smallest cell. The largest cell measuring 170 millimeter into 130 millimeter is the egg of ostrich. Largest cell क्या है? Egg of ostrich. Okay. Now boil a hen's egg, remove the shell. What do you observe? A white material surrounds the yellow part. White material is albumin, right? एक येलो पोर्शन होता है और एक वाइट पोर्शन होता है. वाइट पोर्शन क्या है उसके अंदर का, एग के अंदर का? इट्स द एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, राइट, विच गिव्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मतलब जो बेबी होता है हैन का, उसको वो नरिशमेंट देता है. विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग. द येलो पार्ट इज योक. येलो पार्ट क्या होता है? योक होता है. It is a part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device, right? Egg के अंदर जो yellow portion होता है, that is a single cell. उसको तो आप बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, right? So it is quite big. Are the cells in an elephant larger than the cells in a rat? नहीं, ऐसा नहीं होता है. Organism बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके cells बड़े होंगे, राइट? सेल्स तो छोटे छोटे ही होते हैं पर ज़्यादा नंबर में होते हैं. द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट. सेल्स तो सेम ही होते हैं बट ये कम होता है. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स, both in the elephant and rat are long and branched. nerve cells elephant में भी और rat में भी long होते हैं और branched होते हैं. they perform the same function, that of transferring impulses. transfer करता है impulses. हमारी body में भी लंबे लंबे होते हैं nerve cells. कभी छोटे भी होते हैं, not necessarily always they are long, right? now cell structure and function. एक एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट, दैट वी शैल स्टडी. वी विल स्टडी द जनरल स्ट्रक्चर हियर, बट अलग अलग सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जांपल मसल सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अलग होता है क्योंकि मसल सेल ऐसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं. रेड ब्लड सेल्स आपकी ये ऐसे राउंड स्पेरिकल होते हैं. प्लेटलेट्स आपके लंबे वापस पिंडल शेप के ऐसे होते हैं. प्लेटलेट्स का शेप आई विल जस्ट शो यू. Platelets are of this shape, this type of shape it is, right? So they can easily penetrate into any two different cells, right? That is why they have got this shape. Okay.